Let's see back exercise question 56. Bhasak Limited forfeited 20 shares. Each share was of ₹10 and 7 called up. सबसे पहले whenever I am passing the entry of forfeiture, what we have to keep in our mind that is your called up capital. If it is fully called up, then you will be multiplying number of shares to be forfeited with the face value. If it is not fully called up, then you have to search with what is the amount of called up money on which the shareholder paid application money and allotment money of ₹5. It means कि दोनों को मिला के 7 called up है तो पे कितना हो चुका है? Only 5 paid up, right? Out of this 15 reissue हुए हैं, वो बाद में देखते हैं. Firstly, I am related to pass the first entry of forfeiture. So ऊपर पूरा लिखेंगे journal in the books of Bhasak Limited. Proper format आप बनाएंगे and you will be passing the entry with the narration, right? 3 entries are being required. So let me pass the first entry. This is first part I am doing, and under first part, first entry I am passing. That is what? Share capital debited. Premium है नहीं क्वेश्चन में, तो जैसे ही मैं शेयर कैपिटल डेबिट करती हूँ, सेकंड क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि एसपीआर डेबिट होगा. सो एसपीआर इज नॉट टू बी डेबिटेड हियर बिकॉज द शेयर्स वर इशूड एट पार, वर नॉट एट प्रीमियम. तो पूरा लिख के आना है भाई आपने, अकाउंट भी पूरा वर्ड लिखना है एंड देन डेबिटेड. 2, a special account we open and in the special account we transfer that amount which they have already paid. And how much they have paid? 20 into 7 was your called up money, that is 140. Then 20 into 5, उसने खुद बोला है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के उसने ₹5 पे करे हैं. So 20 into 5, that is what? 100. So ₹2 they haven't paid, which we transfer to calls in arrear, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी कॉल्स हैं. हो सकता है वो फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. तो यू कैन राइट कॉल्स इन arrear. ठीक है. So this is what for. Now he is talking about whole of these shares we are not reissuing. 20 शेयर्स अगर हम लोगों ने फोरफिट किए हैं, 100 फोरफीचर की अमाउंट थी. 20 शेयर्स के पीछे यू हैव टू proportionally reduce it. आपको ये वर्किंग नोट्स में बता के आना है उसे. So maximum ₹75 you can use as a discount when you will be reissuing these shares. Right, 75 है maximum जो मैं यूज कर सकती हूँ. So let's see कितने रुपीस में किया है. As ₹7 per share for ₹8 per share. I am reading the line once again. Out of these, 15 shares were reissued to Naresh as ₹7 per share paid up for. For means ₹8 में रीइश्यू हुआ है, ₹7 मान के. ठीक है. शेयर कैपिटल में ₹7 जाएगा, मीन्स प्रीमियम पे गया. बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर forfeited account debited to what? Share capital. So share forfeited is not to be debited here. Why? Because we are getting more value. ₹7 का शेयर आप ₹8 में रीइश्यू कर रहे हैं. This is what? To share capital, to security premium reserve, that is SPR, right? So how much you are getting? 15 into 8, that is 120. Share capital में जाएगा 15 into 7, that is 105. और SPR आपका कितना है? ₹15. ठीक है. ₹1 आपका क्या है? प्रीमियम है. So let me see, share forfeiture का कितना पैसा बच गया? Whole amount is being left. ₹75 capital reserve में ट्रांसफर होगा. Let's check its answer. 56 question from the answer sheet. Yes, ₹75 done. So you will not be transferring this whole amount 100 to your capital reserve. You have to reduce this 100 beyond 15 shares. So here I reduced it beyond 15 shares. I proportionately reduce it. So maximum amount which I was supposed to use at the time of issue, that was ₹75, but whole of the amount remains unutilized, you know. So this whole amount you will be transferring and you will be passing the third entry here, share forfeited account debited to capital reserve. Share forfeited account debited to capital reserve, right? So this ₹75 we are transferring to capital reserve. Now see the next. Yes students, second part देखिए बेटे. See the second part. 56 क्वेश्चन सेकंड पार्ट, बोर्ड का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ ऐसा. इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं. दिस इज व्हाट? सेकंड पार्ट. वाई लिमिटेड, ऊपर लिखोगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ, लेट मी राइट इट फॉर यू. जर्नल इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड.
We are passing the entries in the books of company, not in the books of shareholder, right? We are treating ourselves as a company. This is what in the books of Y. और पे the format पूरा लिखेंगे, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount, and then rupees amount in RA. Y Limited forfeited, let me write the highlighting point, 90 shares, 10 रुपए का एक, 8 rupees called up. और फॉर द फर्स्ट टाइम अगर वो कह रहा है फोर फीचर हमारा प्रीमियम पे हुआ है, इट मींस कि +2 प्रीमियम था. हमने आर को इशू करे थे, आर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट मनी वाज 5 एंड दैट वाज 3 + 2 इसमें प्रीमियम था. फिर रीइशू की बात तो बाद में करेंगे ना, राइट? रीइशू वी विल सी लेटर ऑन, पहले फोर फीचर की एंट्री तो करवाओ. हाँ चलिए करिए जी एंट्री. शेयर कैपिटल इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड व्हेन वी forfeit the shares. And how many shares? That is 90. How much was the called up amount? That was rupees 8. So it is what, 720. Then second question always comes into my mind, that is, were these shares at premium? Yes, these were at premium. So you will write the full word, security premium reserve. Account debited. How much security premium was? That was rupees 2. So 90 into rupees 2, that is 180. Then a special account we open. That is share forfeited. और जिस कारण से forfeiture हुआ है वो कारण शेयर अलॉटमेंट है भाई. शेयर अलॉटमेंट अमाउंट he was giving in the question, that was rupees 5. So 90 into rupees 5, 90 into rupees 5, that is what, 450. ठीक है, तो डेबिट अमाउंट भाई इधर लिखनी है. लेट मी रेज इट. डेबिट अमाउंट इधर लिखिए और क्रेडिट इधर लिखिए. शेयर forfeited में पहले अलॉटमेंट का लिखिए, फिर शेयर forfeit का लिखिए. शेयर forfeit में भी हमारा 450 ही आएगा, राइट? और 450 कैसे आएगा, देखो जरा कैसे इसने करा होगा. हाउ मेनी शेयर्स, हमने कितना कॉल अप किया होगा, 8 में से 3 किसका था, अलॉटमेंट का. तो इट मींस कि 5 एप्लीकेशन करा होगा. 90 into 5 काउंटर चेक भी कर लीजिए, अदरवाइज जस्ट गो विद द बैलेंसिंग फिगर, राइट? सारे क्वेश्चन ऐसे ही करें हम लोगों ने, बैलेंसिंग फिगर से हमारा ठीक आंसर आ जाता. नाउ कम टू नेक्स्ट. Yes, out of these shares how many shares we are reissuing? 80 shares. तो forfeiture को reduce करो. 450 was beyond 90, आप 80 से multiply करो, ये आपका जाएगा 5 पे. तो maximum 400 we can use. ठीक है, forfeiture के टाइम पे हम कितना यूज कर सकते हैं, 400. रीइश्यू के टाइम पे हम forfeiture में से यूज कर सकते हैं. As rupees 8 called up 4 rupees share, 8 वाला शेयर 10 में, तो आंसर मेरे को पहले से पता चल गया 400 आना है, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहा है. शेयर forfeited यूज ही नहीं होगा. लेट्स सी हियर. बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, 8 वाला शेयर आपने 10 में इशू किया है. 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 80 into 10, 800. 80 into 8, that is 640. डेबिट क्रेडिट देख लेना कैसे लिखना है. एसपीआर कितना होगा, that is 160. 80 into rupees 2. ठीक, तो check your answer from the page where he gives the answers. That is again 56 or 57. Yes, 400. The whole amount you will be transferring because that remains unutilized in this case. ठीक है, so this whole amount we will be transferring. 450 नहीं आंसर लिख के आओगे कैपिटल रिजर्व में, आप 400 लिख के आओगे. You need to reduce proportionately, but whole of the amount remains unutilized, so that's why we will be transferring it to your capital reserve. Let's see the next. Let's see. Jan Limited invited applications for 1,12,000 shares. Each share was of ₹10. जैसे वो at par की बात करता है, means मेरी complexity इतनी नहीं है. If I talk about the premium, तो थोड़ी सी complexity हमारी question में बढ़ जाती है. But hereby he is issuing at premium. How that ₹10 is to be covered? Let me tell you. 1, 2, 3, 4. चलो. Consecutive numbers में दे दिया. This is application, this is allotment, this is first call, this is second and final call. Now come to next. हमारे पास okay, under subscription का केस है भाई. You invited the applications for 1,12,000 shares. देखो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन डाला है. And you just received the applications of 1 lakh shares. तो हम लोगों ने सारे शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे दिए. प्रो राटा अप्लाई नहीं हुआ, और बढ़िया है हमारे लिए. अब बात करेंगे रमेश की और सुरेश की. देखते हैं किन्होंने डिफॉल्ट किया. तो रमेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और
यहाँ पे कोई आपने अलॉटेड वगैरह नहीं निकालना, ना ही अप्लाइड निकालना है, क्योंकि 100% अलॉटमेंट थी। रमेश के 2000 शेयर्स थे, इसने ₹2 के हिसाब से हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, मींस इसने 4000 नहीं दिया। अलॉटमेंट की इमीडिएटली बाद इसके शेयर्स क्या कर देना, फोरफिट कर देना। अब सुरेश की बात करते हैं। सुरेश ने किस चीज का डिफॉल्ट किया, इसके 500 शेयर्स थे, his shares were forfeited after first call. He did not pay the first call. First call was ₹3, means इसने 1500 नहीं दिया। इसके शेयर्स आपने फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर देने हैं, फोरफिट कर देने हैं। फिर फोरफिटेड शेयर्स दोनों के मैंने री इशू करे, ₹9 पे फुली पेड अप। और री इशू करने के बाद, ये हम लोगों ने इलस्ट्रेशन भी करी है कल, री इशू करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगवाई। कोई बात नहीं, वी विल फॉलो द सीक्वेंस, वट एवर ही इज सेइंग इन द क्वेश्चन, द सेम आई विल बी फॉलोइंग इन माय जर्नल एंट्रीज। ठीक है, 1 लाख आपको एप्लीकेशन आई है, ₹1 के हिसाब से 1 लाख ही आया होगा। पहली एंट्री बहुत आसान, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, वेरी इजी क्वेश्चन 2019। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। दिस इज व्हाट 1 लाख, आप जीरोस के साथ लिखेंगे। देन शेयर ट्रांसफर एंट्री। अब मेरे को नहीं लगता मेरे को कोई बुक की जरूरत है, क्योंकि मेरे को रीइशू की एंट्री में बस बुक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट की सारी हाईलाइटिंग लाइन पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। ठीक, लेट्स फॉलो द सीक्वेंस। दिस इज व्हाट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नो बैंक, नो शेयर अलॉटमेंट, बिकॉज देयर वाज नो एक्सेस एट ऑल। वेरी इजी, फर्स्ट एंड 2 एंट्रीज, फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इज व्हाट शेयर कैपिटल, so this is once again 1 lakh. Now the turn has come to make the allotment due, and how much allotment, that is ₹2, 1 lakh into 2, that is ₹2 lakh. करिए जी due, share allotment account debited to share capital, share allotment account debited to share capital. हाँ, this is to share capital, that is ₹2 lakh. क्या मेरे को अलॉटमेंट सारी मिल गई है? नहीं, रमेश ने डिफॉल्ट किया था। ही वाज होल्डिंग 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2, ही वाज नॉट पेइंग ₹4000 टू मी। इसका कोई एक्सेस वगैरह मेरे पास नहीं है। 2 लाख में से 4000 माइनस करिए, 1,96,000। Cause in area he is not asking to open, so I am just passing the entry with the net amount. Bank account debited to share allotment, right? So this is, yes, this is what, 1,96,000. अलॉटमेंट की इमीडिएटली बाद ही टोल्ड अस टू फोरफिट हिज शेयर्स। तो फोरफिचर की एंट्री यहां पे देखिए रमेश की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम है नहीं, टू शेयर फोरफिटेड, और उसने क्या नहीं दिया मेरे को, शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया भाई, टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। हमेशा कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं। ₹1 एप्लीकेशन का, ₹2 अलॉटमेंट का, मींस ₹3 ओनली कॉल्ड अप थे। 2000 into 3, that was 6000. 2000 into 1, that 2000 ओनली एप्लीकेशन ही पे, और अलॉटमेंट का डिफॉल्ट कितना था उसका, 4000। इट मींस किसका, फोर फीचर में 2000 पड़ा हुआ है। अब रमेश के फोर फीचर के बाद आप अपनी फर्स्ट कॉल करोगे, और रिमेंबर वन थिंग, आपके पास 1 लाख टोटल शेयर्स है, लेट मी राइट इट हियर। उस 1 लाख में से 2000 आपके क्या हो गए हैं, फोरफिट हो गए हैं। इट मींस कि आप फर्स्ट कॉल 98,000 शेयर्स पे कॉल करोगे। 98,000 into what, 3, so let's multiply। 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करती तो 3 लाख आता, बीच में से 6,000 माइनस कर दो, so you will be passing the entry with 2,94,000, right? तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, right, 2,94,000, 2,94,000, क्लियर। अब किसने नहीं दिया, सुरेश ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, और ये मैंने सुरेश का निकाल के रखा हुआ है, 1500 का उसका डिफॉल्ट है। 2,94,000 में से 1500 जब माइनस करेंगे तो 2,92,500 वी विल बी रिसीविंग। चलिए जी, रिसीव की एंट्री करिए। फोर फीचर की आई एम नॉट इरेजिंग इंटेंशनली, क्योंकि यहां से मेरे को फोर फीचर की अमाउंट देखनी है री इशू के लिए, राइट। करिए जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल रिसीव करिए। टू व्हाट, सुरेश के जैसे ही डिफॉल्ट किया, फर्स्ट कॉल के बाद सुरेश के शेयर फोरफिट कर दिए। सो फर्स्टली रिसीव दिस अमाउंट, देन पास द एंट्री फॉर द फोर फीचर ऑफ सुरेश शेयर। दिस इज व्हाट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। सो इट कम्स टू अस 2,92,500, 2,92,500।
अब सुरेश के शेयर फोरफिट करते हैं। जैसे सुरेश के शेयर फोरफिट करने हैं, आई हैव टू सी द कॉल्ड अप अमाउंट एंड द कॉल्ड अप अमाउंट इज 1 2 3 दैट इज ₹6. 500 into 6 share capital is to be debited. Number of shares to be forfeited into called up money, and the called up money in this case is ₹6. 500 into 6, right? This is what share capital debited with ₹3,000. To what share forfeited, what he has paid, ₹3. ठीक है, 3 नहीं पे किया 6 में से, और ₹3 वो पे कर चुका है. 500 into 3, 1500. So what he has not paid, we call it share first call. That is again 1500. So now he is reissuing भाई सारे शेयर्स. हमारे पास टोटल शेयर्स है कितने रीइश्यू? 2000 रमेश के, 500 सुरेश के. It means कि we are going to reissue. Now I am reading the statement once again because I have to see the rate at which these shares are being reissued. These shares are being reissued at ₹9 as fully paid up, right? Means डिस्काउंट पे गए हैं और मेरे पास फोरफीचर की कितनी मनी पड़ी है? 1500 सुरेश का और 2000 रमेश का. 3500 रुपीज तक मैं डिस्काउंट दे सकती हूं एट द टाइम ऑफ री इशू. क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, टू व्हाट शेयर कैपिटल 2500 shares into 9, 22,500. This is 25,000. So 2500 we have used. Your answer is, आपके पास शेयर फोरफीचर का कितना था? 1500 plus 2000, 3500. So you used out of that 2500. 2500 ही आपने यूज किया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए एंड चेक योर आंसर. बुक में दिया होगा आंसर, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज व्हाट 1000. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटे. वैसे तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की आमतौर पे लास्ट एंट्री रहती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. वो कहता है आफ्टर री इशुइंग वी आर कॉलिंग द सेकंड कॉल, second and final call. So second and final call, now you will be calling on after the deduction of these 2500 shares. आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं, बाकी कितने बचे? 97,500. So second and final call 97,500 शेयर्स पे मंगवाएंगे. 2 एंट्रीज अभी हमारी रहती हैं. पहले सेकंड कॉल को कॉल करिए और फिर उसे रिसीव करिए. क्या एंट्री होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट शेयर कैपिटल. हाँ जी, कैसे बताना है उसको एग्जामिनर को? 97,500 into 4. कई बच्चों ने सजा के 1-1 लाख करते जा रहे हैं, गलत है. जो शेयर कैंसिल हो गए हैं उनको डिडक्ट करके बाकी शेयर्स के ऊपर यू विल बी कॉलिंग द फाइनल कॉल. सो लेट्स मल्टीप्लाई. अगर 1 लाख होता तो हमारा 4 लाख अमाउंट बनती. ठीक है, 2500 बीच में से माइनस कर दीजिए, 10,000 माइनस हो जाएगा 390. 3,90,000. चलो काउंटर चेक करते हैं, मल्टीप्लाई ठीक हुआ. This is 500, 0 0 20 0 2 28 30 3 36 और 3. ठीक है, बिल्कुल 3,90,000 डन. We are receiving this whole amount. Bank account debited to what? Share second and final call. Write the same amount here. So this is the way how the question is to be done. So this is a board question where we pass the entry of second and final call after reissuing the share. Answer is matching. So capital reserve 1000 he is putting. Okay. I'm now searching few more question of board. So turn the page. It's the 61st question. Somebody texted something. Let me. 61st question again. ये बोर्ड में आया हुआ है. Venus Limited was registered. This is only for your information. What is the meaning of authorized capital? Authorized capital is the maximum limit of the capital which the company can raise. Right? Authorized capital नाम आ जाए, registered capital नाम आ जाए, nominal capital आ जाए, one is the same thing. So 4 lakh shares हैं कंपनी के पास देने को maximum. 10 रुपए का एक है. 70,000 of these were issued. Yes, this is very important point here. Whatever you are issuing for a purchase consideration other than cash, for that also you have to pass the entry. So 70,000 shares आप मैसर स्टार लिमिटेड को इशू कर रहे हो क्योंकि आपने उनसे बिल्डिंग खरीदी है. पहली एंट्री तो बिल्डिंग परचेज की करो, बाकी तो बाद में बनाते हैं सारा प्रोराटा वगैरह. अगर है क्वेश्चन में तो पहली एंट्री बिल्डिंग वाली, मतलब 8 मार्क्स के क्वेश्चन में उसने परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला केस भी डाल दिया.
बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू मेसर्स स्टार्स लिमिटेड, सिखाया हुआ आपको ये केस। और कितने की बिल्डिंग खरीदी है भाई, इनको 70,000 शेयर्स दिए हैं फुली पेड अप, 70 into 10 इट मींस की 7 लाख की बिल्डिंग खरीदी होगी। और अगली एंट्री इनको शेयर्स अलॉट करने की आती है, सेकेंड एंट्री मेसर्स स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आप पूरा वर्ड लिखेंगे, दिस इज कैपिटल भाई, दिस इज 7 लाख। तो यहां तक बात खत्म। कहता बाकी हम लोगों ने पब्लिक को शेयर इशू करे हैं, और पब्लिक को कितने शेयर्स इशू करे हैं, 2 लाख। आपके पास ओवरऑल 4 लाख शेयर्स है, दैट इज मैक्सिमम कैपिटल, ठीक है। और 70,000 इसने मेसर्स स्टार्स को दिए हैं, पब्लिक को इशू करे हैं 2 लाख। अब सारा हिसाब किताब बनाते हैं। दिस इज व्हाट 2 लाख शेयर्स पब्लिक को, हर शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। 10 रुपीज ये कैसे कवर करने हैं, लेट्स सी, 3, 2, 2 and 3. Start from this left hand side. This is what 3 on application, 2 on allotment, 2 on first call and 3 on second and final call. Let's proceed. अब देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हमारा illustration में था। He gives you the plot and he tells you the information what they actually have paid. हाँ ये स्टूडेंट्स, जो पब्लिक को शेयर्स 2 लाख इशू करे हैं उसके ऊपर अमाउंट कैसे है, 1 लाख शेयर्स फुल अमाउंट कॉल्ड, ओके, अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस शेयर्स वर 1 लाख के ऊपर सब कुछ मिल गया, मींस जितना हम लोगों ने कॉल किया 10 रुपीज का 10 रुपीज, इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। 60,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ ₹7 दिया। जब इन्होंने ₹7 दिया मींस इन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी हमें, सेकंड एंड फाइनल कॉल। देन 30,000 शेयर्स ऐसे थे जिसके ऊपर सिर्फ ₹5 ही मिला है, मींस उन्होंने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही दी है, ना फर्स्ट कॉल दी है ना सेकंड कॉल दी है। 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ ₹3 मिला है, मींस उन्होंने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया। So this is the data in front of you. अब हुआ क्या, डायरेक्टर्स forfeited 10,000 शेयर्स, यस, डायरेक्टर्स ने इन शेयर्स को फॉरफिट करने के बारे में सोचा। अब ये वाला डाटा मेरे को रिक्वायर्ड है क्योंकि जैसे जैसे मैं एंट्री करती जाऊंगी लाइक किसकी अलॉटमेंट रिसीव की, तो अलॉटमेंट किस पे नहीं मिली, अलॉटमेंट दिस इज 30,000 भाई, 30,000 शेयर्स पे भी अलॉटमेंट नहीं मिली और 10,000 शेयर्स के ऊपर भी 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिली, इसके ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं मिली, इसके ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों नहीं मिली। इट मींस कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट अमाउंट आई रिक्वायर दिस डाटा। आगे चलते हैं, फिर ये शेयर्स रीइश्यू हो गए, वेरी इजी क्वेश्चन बेसिकली। चलिए जी करना शुरू करते हैं, पब्लिक वाला। ये 2 एंट्रीज करने के बाद हम अपना करते हैं, नो ओवर सब्सक्रिप्शन एट ऑल, नो एक्सेस मनी इज देयर, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। 3 2 2 3 याद रखना भाई, 3 2 2 3 राइट। चलिए जी, अब पहली एंट्री मतलब वैसे सीक्वेंस वाइज थर्ड एंट्री होगी जब आप एप्लीकेशन मनी ड्यू करते हो, और एप्लीकेशन मनी ड्यू कितने से होगी, 3 लाख से, राइट। चलिए जी 3 लाख, हाउ 3 लाख, sorry 6 लाख से होगा, बिकॉज 2 लाख शेयर्स वी आर इशूइंग टू द पब्लिक, 2 लाख into 3 दैट इज 6 लाख। करो जी, दिस इज थर्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट 6 लाख। अगली एंट्री, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, नो एक्सेस एट ऑल, अगेन इट इज 3 लाख। Now allotment due करिए, allotment is ₹2, 2 lakh shares into 2 that is what 4 lakh, right? Allotment due की एंट्री करिए बेटा जी, this is what share allotment account debited to share capital, that is what 4 lakh। अब देखो कितने शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट नहीं मिली, 10,000 शेयर्स के ऊपर सिर्फ ₹3 मिला है, इट मींस कि इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया, इट मींस कि 10,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट नहीं मिली। 10,000 into 3 30,000 हमें कम मिला है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, चाहो तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट कर देना, टू शेयर अलॉटमेंट दैट इज व्हाट 3,70,000, ठीक है। पहले फुली कॉल्ड अप करेंगे और फिर शेयर्स को फोरफिट करना है, ये सीक्वेंस है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करिए, फर्स्ट कॉल कोई भी शेयर फोरफिट नहीं हुआ, हम सबसे सब कुछ मंगवा रहे हैं, ठीक है। 10,000, लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस अगेन,
हाँ 10,000 के ऊपर ₹3 मिला है, इट मींस कि 10,000 के ऊपर आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली। अब कौन मेरे को बताएगा फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिली? 40,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं मिली, क्योंकि इस 10,000 वालों ने सिर्फ ₹3 दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया, मींस इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी। ठीक है, हम मंगवाएंगे इनसे भी क्योंकि ये शेयर्स अभी फोरफिट नहीं हुए। व्हाट अबाउट दिस 30,000 वालों ने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, मींस फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी। 40,000 शेयर्स के ऊपर आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगी। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करवाइए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पूरे शेयर्स के ऊपर 2 लाख इंटू 2 दैट इज व्हाट 4 लाख। ठीक है, मैंने अभी बोला 40,000 शेयर्स के ऊपर 80,000 आपको नहीं मिला, तो कितने की एंट्री करोगे आप? फॉर रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, 80,000 बीच में से माइनस कर दीजिए, सो वी आर रिसीविंग 3,20,000, वी आर रिसीविंग 3,20,000, राइट? दिस इज शेयर फर्स्ट कॉल भाई, दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज फर्स्ट। आगे चलिए, अब सेकेंड कॉल ड्यू कीजिए। 9th एंट्री पे पहुंच गए हम लोग। सेकेंड कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिली? 10,000 पे भी नहीं मिली, 30 पे भी नहीं मिली, 60 पे भी नहीं मिली, क्योंकि 60 पे सिर्फ ₹7 मिला है, मीन सेकेंड कॉल नहीं मिली। पहले सेकेंड कॉल ड्यू करिए सारे शेयर्स के ऊपर, और फिर 1 लाख शेयर्स के ऊपर आपको क्या नहीं मिली? सेकेंड कॉल नहीं मिली। ठीक है, पहले ड्यू करिए। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड, second and final call we call it to what share capital, so we are calling it on the full shares 2 lakh into 3 that is 6 lakh। 1 लाख शेयर्स के ऊपर आपको क्या नहीं मिली? सेकेंड कॉल नहीं मिली। 1 लाख into 3, ठीक है, that is what 3 लाख आपको मिला, 3 लाख नहीं मिला। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, yes, second and final call ₹3 lakh only, second and final call, that is ₹3 lakh. Up now the turn has come when you have to pass the entry of forfeiture. How many shares the directors have decided to forfeit? Let me tell you 10,000। ठीक है, 10,000 शेयर्स जिनके ऊपर अलॉटमेंट नहीं मिली थी, करिए 10,000 शेयर्स को फोरफिट करिए। शेयर कैप फुली कॉल्ड अप मानेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 into 10 that is 1 lakh। a special account इन 10,000 में सिर्फ हमें क्या दिया है? yes ₹3, वही फोरफीचर में जाएगा। 2 शेयर फोरफिटेड 10,000 into 3, 3 रुपए पे करे, 7 नहीं पे करे, जो नहीं पे करे वो सारे कॉल्स इन एरियर में डाल दीजिए, या अलग अलग लिख दीजिए 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और यू कैन कॉल इट कॉल्स इन एरियर टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, सो दिस कम्स टू अस 70,000। अब मेरे को री इशू की एंट्री करनी है और मेरे को डिसाइड करना है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। लेट्स सी हाउ मच अमाउंट वी विल बी ट्रांसफरिंग टू द कैपिटल रिजर्व। यस, सारी की सारी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी, बिकॉज वी आर री इशूइंग एट ₹12 प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं। वेरी इजी, वंस अगेन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल to SPR, that is security premium reserve. How many shares we forfeited? 10,000 into 12, 1,20,000. This is 1 lakh, this is 20,000. You can check your answer. The whole amount of share forfeiture you are transferring to the capital reserve. Now, if you have any doubt from this chapter, you can ask. Preparation of balance sheet, missing value questions, अलग से forfeiture और reissue के question that are very very important. So 30,000 answer is matching भाई, राइट? फोरफीचर की एंट्री उसने खुद करके आपको दी है। शेयर कैपिटल इज टू बी डेबिटेड विद 1 lakh, 2 शेयर फोरफिटेड 30,000, 2 शेयर, हाँ, ही रोड ऑल द 3 calls, so I put the whole amount the 70,000 into what? Your calls in arrear account. आप चाहो तो अलग से तीनों भी लिख सकते हो, that already I told you. तो उसने तीनों अलग अलग लिखे हैं, ठीक है? In any way you can solve it. So this is enough from my side. If you are having any doubt, you may ask.